دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 1 کے بارے میں۔ فرینڈ، سیزن 2 سیزن 1 سے کہیں زیادہ سنجیدہ، دلچسپ اور خوبصورت ہونے جا رہا ہے۔ آج کا پہلا ہی ایپیسوڈ اس سیریل کو کچھ وقت کے لیے بالکل تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ہم جتنا امیجن کرتے تھے، ہم جتنا تصور کرتے تھے، یہ ایپیسوڈ ہمیں اس سے کہیں زیادہ رلا گیا۔ اس ایپیسوڈ میں اس طرح اچانک کائی قبیلے کے لوگوں کو زندہ جلا دینا، ارطغرل کا قید ہونا، حلیمہ کا خطرے کے زون میں رہنا، گندوگڈو، ترگت، دوہان کا ابھی تک کوئی پتہ نہ چلنا، تو یہ ساری چیزیں اس سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 1 کو ہی اداس کر دیتی ہیں۔ اس سیریل میں ایک بار پھر سے تاریکیاں بکھیر دیتی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور اداس سیزن ہے۔ امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو ضرور پسند آئے گا۔ ایک ریکویسٹ ہے تمام دوستوں سے، اپنے چھوٹے بھائی یعنی میری خوشی کی خاطر یار میرے دوسرا چینل اسرار وائس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ڈسکرپشن میں اس کی لنک پڑی ہوئی ہے۔ جتنے بھی ناکام عاشق ہیں، اداس لوگ، بے وفا لوگ، وفا کرنے والے لوگ، شاعری سے پیار کرنے والے دوست، یہ سب دوست لازمی وزٹ کریں چینل پر اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اینڈ شیئر کریں۔ شکریہ ناظرین۔ آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے آپ کو کچھ کردار کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو اس سیزن میں نئے ہیں۔ سب سے پہلے اس سیزن میں جو منگولوں کا سردار ہے اس کا نام نویان ہے۔ بہت ہی خطرناک اور زہریلے قسم کا آدمی ہے۔ انسان تو اس کو اس سیریل میں نہیں کہہ سکتے، درندہ ہے۔ انسانوں کا خون پیتا ہے، لوگوں کو زندہ جلا دیتا ہے، بہت ہی ظالم قسم کا انسان ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے تنگت۔ دوستو یہ نویان کا سب سے بہترین اور بہادر کمانڈر ہوتا ہے۔ یہ بھی نویان کی طرح بہت ہی ظالم اور جابر شخص ہے۔ اس سیریل میں ترکوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر سامان۔ یہ بھی منگولوں کا ایک اہم باشندہ ہوتا ہے۔ اس کی حرکتیں اور چال چلن تو انسانوں والی بالکل بھی نہیں ہوتی، بلکہ ایک بھیڑیے کی طرح چلنا پھرنا اور باتیں کرنا ہوتا ہے۔ بہت ہی عجیب سا کردار دیا گیا ہے اس کو اس سیریل میں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہیں سردار خوشنود۔ سردار خوشنود یہ آئمہ خاتون کے بھائی ہیں اور خوشنود قبیلے کے سردار ہوتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر ہیں تیمور۔ یہ سردار خوشنود کا بیٹا ہے، کافی بہادر بھی ہے لیکن کچھ ایٹیٹیوڈ زیادہ ہی ہوتا ہے اس کا۔ اور پھر ہیں عالیہ خاتون جو سردار خوشنود کی نئی بیوی ہیں، کافی تیز اور چلتی پھرتی نظر آتی ہیں اس سیریل میں۔ اور پھر اس کے بعد کوچا باس۔ یہ منگولوں کا ایک خطرناک غدار ہوتا ہے جو خوشنود قبیلے میں ایک سپاہی کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ بہت سارے ان کے منصوبے صرف اسی کی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حکیم عارف۔ یہ کافی مخلص انسان ہیں اور قبیلے میں حکیم کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں۔ دوستو یہ تھے کچھ اہم کردار سیزن 2 میں جو ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملیں گے۔ باقی کائی قبیلے کے تو سب لوگوں کو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سیزن 1 کے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا ہوگا، کائی قبیلہ انطولیہ کی جانب روانہ ہو جاتا ہے اور آج کے ایپیسوڈ یعنی سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 1 میں ارطغرل اور حلیمہ جنگل کی طرف نکلتے ہیں تازہ ہوا لینے کے لیے۔ وہ چلتے چلتے کافی دور تک آ جاتے ہیں۔ حلیمہ ارطغرل سے آگے ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے پر آ کر رک جاتی ہے اور کچھ اداس سی ہوتی ہے۔ اسی دوران ارطغرل بھی ادھر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، تمہارے دل میں ایسی کیا بات ہے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتی؟ کچھ دنوں سے چپ ہو۔ اگر میری کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معافی چاہتا ہوں، یا میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہو۔ تو حلیمہ مسکرا کر کہتی ہے، ارطغرل، تمہاری زبان سے نکلے ہوئے سخت الفاظ بھی مجھے پسند ہیں۔ تم میرے دل کے راجا ہو میری جان۔ تم نے کبھی مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی اور نہ کبھی میرے دل کو ٹھیس پہنچائی۔ اللہ سب کو ایسی بیویاں دے۔ تو ارطغرل کہتا ہے، پھر کیا بات ہے؟ تو وہ کہتی ہے، ہمارے سردار سلیمان شاہ کو گزرے تقریباً 2.5 سال ہو گئے ہیں
हम तब से मुसलसल सफर में हैं। हमने तब से सुख का सांस नहीं लिया। बहार जल्द गुजर जाएगी और हमारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, लेकिन मेरी परेशानी की वजह ना ही बुरा वक्त है और ना ही मुसलसल सफर। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। और फिर अर्तगल खुशी से उसे घोड़े से नीचे उतारता है और कहता है, बस कुछ दिनों की मुसाफत के बाद हम अपने नए ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। मेरे मामू का पड़ाव भी बहुत करीब है और वो भी महफूज जगह है। इंशाअल्लाह हम जल्द नया वतन हासिल कर लेंगे। तो हलीमा कहती है, मैं अपने लिए परेशान नहीं हूं अर्तगल, और ये कहकर वहां से चली जाती है। अर्तगल ये बातें सुनकर कुछ सहम सा जाता है और फिर अर्तगल भी अपनी तलवार लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़ता है और जाकर हलीमा से पूछता है, किस लिए परेशान हो? क्या बात है हलीमा, कुछ तो बताओ। तो हलीमा कहती है, हमने सुलेमान शाह से कोई वादा किया था। हम उनके पोतों के नाम गोहर, शेरियार और उस्मान रखेंगे। मैं अपने होने वाले बच्चे गोहर के लिए परेशान हूं। अर्तगल मैं मां बनने वाली हूं। हमारा बच्चा होगा इंशाअल्लाह, मेरा दिल कहता है। तो अर्तगल ये सुनकर खुशी से बेहाल सा हो जाता है। उसकी खुशी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही होती। फिर वो अपनी तलवार निकालकर आसमान की तरफ, अल्लाह अल्लाह, ए फलक ए जमीन, तुम गवाह रहना, मैं बाप बनने वाला हूं। तो हलीमा कहती है, आराम से अपने जज्बात पर काबू रखें, अभी बहुत वक्त है। तो अर्तगल कहता है, मेरी जान में कैसे अपने जज्बात पर काबू रखूं? हमारा सारा कबीला इस खुशखबरी का मुंतजिर है। काश सुलेमान शाह जिंदा होते, यकीनन वो बहुत खुश होते। तो हलीमा कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम जितनी भी अच्छी जगह चले जाएं, हमारे बच्चे को रोते हुए यह ना पूछना पड़े उसका बाप कहां है। तो अर्तगल कहता है, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को दुख और तकलीफ से बचा के रखूंगा। तो हलीमा कहती है, अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। ये सारी प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, उन्हें खबर नहीं होती कि एक पल में उनके साथ आगे क्या होने जा रहा है। उनकी ये बातें, उनकी ये गुफ्तगू, उनके ये प्यार भरे लम्हे शायद कई वक्त तक एक दूसरे को देख भी ना सके। उनकी ये गुफ्तगू शुरू ही होती है कि अचानक तुनगत अपने मंगोलों सिपाहियों के साथ उधर, मगर अल्लाह का शेर, अल्लाह का सिपाही अर्तगल उनके सामने खड़ा होता है। एक एक को चुनकर मारना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी 3 सिपाही बचकर निकल जाते हैं। आगे हलीमा और पीछे वो सिपाही। हलीमा भागी ही जा रही होती है। उधर अर्तगल अकेला दर्जनों मंगोलों के साथ लड़ रहा होता है। आखिर अर्तगल उधर खड़ा सब सिपाहियों को खत्म कर देता है। सिर्फ तुनगत अकेला उधर खड़ा होता है। अर्तगल तुनगत पर हमला करने ही वाला होता है कि फिर बहुत सारे मंगोल सिपाही उधर पहुंच जाते हैं। तो तुनगत कहता है, अर्तगल, तू और तेरा बचा कुचा कबीला अपने ठिकाने तक नहीं पहुंच पाएगा, कोई नहीं बचेगा। फिर 2 घोड़ा सवार घोड़ा भगाते हुए अर्तगल की तरफ आते हैं। तो अर्तगल एक सिपाही को गिराकर खुद उसके घोड़े पर बैठ जाता है और वहां से निकल जाता है। उसके पीछे होते हैं। फिर हलीमा बड़ी जुर्रत के साथ तीरंदाजी करके उनको खत्म कर देती है। जब वो तीनों को खत्म करती है, इसी दौरान एक और घोड़ा सवार हवा में तलवार लहराते हुए उसके पीछे पहुंच जाता है और फिर हलीमा अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाती है। मगर सिपाही भी उसके तहक्कुब में होता है, उस पर जानलेवा हमला करना शुरू कर देते हैं। मगर अर्तगल बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ सबको चुन चुन कर सफ़े हस्ती से मिटा देता है, लेकिन अकेला फिर भी अकेला ही होता है। आखिरकार तुर्गत अपने काफी सारे सिपाहियों के साथ उधर पहुंच जाता है और सब सिपाही नेज़े लेकर उसे पकड़ लेते हैं। तो तुनगत कहता है, इसे मारना नहीं, ये सरदार नोयान को जिंदा चाहिए। दोस्तों, अभी हम सरदार सुलेमान शाह का गम नहीं भूले थे। सरदार सुलेमान शाह की वजह से अभी तक हम गमज़दा थे। और फिर पहले ही एपिसोड में अर्तगल का इस तरह गिरफ्तार होना, यह एपिसोड हमें और ही इमोशनल किए जा रहा है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, आगे आने वाले कुछ एपिसोड हमें बहुत ही ज्यादा इमोशनल करेंगे, हमें रोने पर मजबूर करेंगे। तो खैर, दूसरी तरफ हलीमा उस चौथे सिपाही को भी मार देती है
और सीधे खेमे गाह की तरफ जाती है। जब वो काई कबीले की खेमे गाह में पहुंचती है तो क्या देखती है? हर तरफ आग ही आग, लाशें ही लाशें होती हैं। जिस तरफ नजर पड़ती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये क्या हो गया। वो बिल्कुल परेशान हो जाती है, उसका दिमाग काम छोड़ देता है। इतनी लाशें, कुछ लाशों को उन जालिमों ने नेज़ों पे चढ़ाया होता है और आग लगाई होती है। वो बिल्कुल बेहाल सी हो जाती है। फिर दूसरी जानब अर्तगल को सिपाही बांध देते हैं। उसके कंधों पर एक बड़ी सी लकड़ी रख के उसके हाथों को उस लकड़ी के साथ बांध देते हैं और तुनगत अर्तगल को कहता है, आखिर हम मिल ही गए। तेरा सारा कबीला हमारी तलवारों का मजा चख चुका होगा। तो अर्तगल कहता है, मुझे भी मार दो ना। अगर तूने मुझे नहीं मारा तो तुझे मौत भी नहीं बचा पाएगी। तो तुनगत कहता है, नोयान को तू जिंदा चाहिए, तू उसका शुक्र गुजार हो। अब हमारा अगला मकसद इंतोलिया पर चढ़ाई है। कुछ खेमों और चंद चरवाहों के साथ तुम्हारे कबीले का सफर खत्म हो चुका। तुम चंगेज खान की फौज से नहीं बच सकते। तुम्हारा खेल अब खत्म। तो अर्तगल कहता है, यह जमीन जहां पर बहादुर लोग पैदा होते हैं हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, मगर इस जमीन का एक भी टुकड़ा तुम्हें नहीं देंगे। तो तुनगत अपने सिपाहियों को कहता है, चलो। और फिर अर्तगल को उसी तरह बांधे हुए अपने साथ ले चलते हैं। दूसरी तरफ हलीमा हिम्मत करके वापस उसी जगह पर आती है जिधर वो अर्तगल को छोड़कर गई होती है, मगर वहां पर सिर्फ मंगोलों की लाशें होती हैं, बाकी कुछ भी नजर नहीं आता। फिर उसे अर्तगल का घोड़ा नजर आता है। वो सीधी दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है, अर्तगल कहां है? या अल्लाह मुझे मदद दे, या अल्लाह मुझे हौसला दे। फिर ज़ारो कितार रोती है। दूसरी जानब खुशदूर के कबीले में तैमूर गश्त से वापस आता है। जब वो ओताक के सामने पहुंचता है तो सिपाही कुछ संदूक वायर ला रहे होते हैं। तो तैमूर पूछता है, ये संदूक कहां ले जा रहे हो? तो सिपाही कहते हैं, आलिया खातून ने यह सामान यहां से हटाने को कहा है। फिर वो गुस्से से सीधा अंदर ओताक में जाता है। अंदर सरदार खुशनूद और आलिया खातून प्यार की नगरी में गुम होते हैं। नाज़रीन, ये सरदार खुशनूद की दूसरी बीवी होती है, इसी वजह से ये सब कुछ कर रही होती है। इसी दौरान तैमूर बिना इजाजत के अंदर आ जाता है। तो सरदार खुशनूद कहता है, तुम में इखलाकियात नहीं है तैमूर। तो वो कहता है, मेरी मां को भूल जाना और उनकी निशानियां मिटा देना, ये कौन सी इखलाकियात है बाबा? जब तक मैं जिंदा हूं आप इस जगह से मेरी मां की निशानियां नहीं हटा सकते। फिर खुशनूद साहब गुस्से में हो जाते हैं। तो आलिया खातून कहती है, अगर तैमूर नहीं चाहता कि उसकी मां का सामान यहां से हटाया जाए तो हमें उसके जज्बात का ख्याल रखना चाहिए और तैमूर को भी चाहिए कि वो मुझे अपनी मां जैसा ही समझे। तो तैमूर हां में सर हिलाकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जब मंगोले अर्तगल को उसी तरह बांध कर ले जा रहे होते हैं, चलते चलते अर्तगल बहुत थक जाता है और एक जगह पर गिरकर बैठ जाता है। सिपाही उसको धक्के देते हैं, नेज़े मारते हैं, मगर वो बिल्कुल निडाल होता है। फिर तुनगत गुस्से से आकर उसे कोड़े मारता है काफी ज्यादा, मगर अर्तगल की जुबान पर अल्लाह पाक के मुबारक नाम होते हैं और कहता है, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद। और फिर हिम्मत करके उठ जाता है और वहां से चलना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ सरदार खुशनूद के कबीले में काई कबीले के बचे कुचे लोग और जख्मी लोग पहुंच आते हैं। सबका बुरा हाल होता है, तकरीबन सबके सब जख्मी होते हैं। आइकस को इन जालिमों ने जिंदा जला दिया होता है। गोगचे और सुलजान ने आयमा खातून को पकड़ा होता है। सबके सब फरियादें कर रहे होते हैं। किसी ने जख्मियों को पकड़ा होता है और कुछ खुद जख्मी होते हैं। एक अफराद तफरी का माहौल बना होता है। सब तरफ रोने और आहें ही होती हैं, सिसकियां और उदासियां ही होती हैं। अंदर से सरदार खुशनूद भी दौड़ते हुए बाहर की तरफ निकलते हैं। तो हकीम आरफ कहते हैं, आलिया खातून अल्लाह खैर करे। तो वो कहती हैं, खैर तो नहीं है, इनके लिए तिबी अमदाद का बंदोबस्त करो जल्दी। फिर काई कबीले के बच्चे कुचे लोग गिरते संभलते खुशनूद कबीले में दाखिल होना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन, यहां पर आज के इस एपिसोड का एख्तिताम होने जा रहा है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। पसंद तो जरूर आया होगा, मगर उसके साथ यकीनन उदास भी होंगे कि पहले ही एपिसोड में काई कबीले के साथ ये क्या हो गया। देखते हैं अगले एपिसोड में अर्तगल और हलीमा के साथ क्या होने जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।